हेलो एंड वेलकम टू जायके का सफर फ्रॉम कर्नाटक। तो आइए हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं बेंगलुरु से और मिलते हैं आज के बैंगलोर से। Bangalore is one of India's most attractive and enjoyable cities. सुहाना मौसम और यहाँ के पूरे लैंडस्केप पर सजे हुए अनगिनत पार्क्स और बगीचे, तभी तो इसे गार्डन सिटी कहा जाता है। हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, माइग्रेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ ने पिछले कुछ सालों में यहाँ के पोल्यूशन को दुगना कर दिया है, फिर भी यहाँ की खूबसूरती से आपका सामना हो ही जाता है। Speaking of the climate and setting of Bangalore, Winston Churchill said in his book My Early Life, the climate of Bangalore at more than 3,000 feet sea level is excellent. Although the sun strikes with torrid power, the nights except in the hottest months are cool and fresh. Flowers, flowering shrubs and creepers blossom in glorious profusion. किसी भी पुराने शहर की तरह बैंगलोर ने भी वक्त के कई रंग देखे। सन 1537 में केम्पे गौड़ा ने 4 टावर्स बनाकर बैंगलोर शहर की बुनियाद रखी। इन 1638 शाहजी भोसले ने आदिल शाह के लिए इस पर कब्जा किया एंड आदिल शाह गिफ्टेड इट बैक टू हिम। 1640 में शिवाजी ने बैंगलोर की एक लड़की से शादी की। इन 1687 औरंगजेब कैप्चर्ड द सिटी एंड इन 1690 औरंगजेब ने इसे 3 लाख में वोडियार्स को बेच दिया। 1759 में वोडियार्स ने इसे हैदर अली को गिफ्ट कर दिया, जिसने यहाँ का फेमस लाल बाग बिल्ड किया। 1791 में कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हरा तो दिया, बट रिटर्न द सिटी टू हिम। 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई और ये शहर एक बार फिर वोडियार्स को वापस मिल गया। 1831 में इस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के पास चली गई एंड 1867 में यहाँ अतारा कचहरी का निर्माण हुआ, जो आज हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1887 में बैंगलोर पैलेस बना और 1954 में हनुमान थैया ने यूरोपियन स्टाइल की इमारतों से घिरे हुए इस शहर में इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल पेश किया, ये विधानसभा बनाकर, which by the way is the largest legislative building in the whole country. Bangalore houses both architectural wonders of yesteryears and multi-storied buildings with modern amenities. यहाँ की हर चीज में नए और पुराने का इतना खूबसूरत संगम शायद ही कहीं और मिले। इस नर्म मिजाज शहर से जरा घुलिए मिलिए और यहाँ वहाँ आइए जाइए तो आपको यहाँ की रिचनेस का अंदाजा होगा। वेंकटेश, टेल मी, आप टिपिकली बैंगलोर के हैं। या आप क्या बताएंगे, what is something for a tourist to indulge in? What would he love to do in Bangalore, according to you? Well, I've been born, brought up, and I've spent all my years here in Bangalore, and this is the best place I can ever think of. And
You know, there's a lot of greenery here, and this is considered as the garden city of India. I think they must visit Bangalore, and I think it's a lovely place, lovely people around. So tell me, when a tourist comes here, वो खाएगा क्या? What is the typical food that, because there's so much food available, so much cosmopolitan. Yes, there is a lot of. What's your favorite dish? Let's put it this way. I mean, okay. Well, if you ask me, I'm basically a vegetarian. I want to know Venkatesh's favorite dish. Tell the viewers that today. Let them find out. Well, it's basically South Indian vegetarian food. One dish. My One. favorite. Narrow it down. You can have a dosa with the sambar. I'll give you two. I think that's my favorite, dosas. Yeah. It's nice chatting with you. Thank you for your time. Thank you very much. 450 साल से भी ज्यादा पुराने शहर में ऑथेंटिक फूड की तलाश करते हुए हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली, और वो ये कि यहाँ सेटल्ड हो गए ब्रिटिशर्स ने अपने देश के खानों को यहाँ के स्पाइसेस और मसालों के साथ मिलाकर बैंगलोर के क्विजीन को एक यूनिक जायका दिया. What would let's say about 50 years back a typical Anglo-Indian Sunday brunch consist of? Either a biryani or a coconut rice. We have coconut rice and a ball curry, as we call it, meatballs, that is, in curry, and a sort of a chutney, a red chutney made out of the onion and chili. Okay. So that is the typical Anglo-Indian thing. करीब 175 साल पुराने ये जायके आज भी जिंदा है बेंगलोर में और यहाँ के ऑथेंटिक फूड का हिस्सा बन चुके हैं. और अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ के सबसे ऑथेंटिक फूड जॉइंट से. वैसे तो इसका नाम है मवाली टिफिन रूम, लेकिन अगर आप सिर्फ MTR भी कहेंगे तो भी लोग आपका इशारा समझ जाएंगे. दुनिया बदल गई, लेकिन MTR की अदाएं नहीं बदली, और यही यूनिक सेलिंग पॉइंट है यहाँ का. साफ सुथरे इस रेस्टोरेंट में हर जायके को सर्व करने का एक वक्त है. सुबह 6:30 बजे मिलता है इडली राइस, 9:30 बजे से आप जायका ले सकते हैं रवा इडली डोसा का, और शाम 5:30 बजे से पूरी आलू और चटनी के शौकीन जमा होने लगते हैं यहाँ. इसके अलावा एवरी संडे यू कैन टेस्ट इट स्पेशल स्वीट डिलाइट चंद्रहारा, जो सिर्फ यहीं मिलती है. और आइए अब मिलते हैं द फेमस MG रोड पर, जहां पर एक छोटा सा कैफे अट्रैक्ट करता है उन सबको जिन्हें तलाश है एक कप मजेदार कॉफी की, और साथ में अगर कुछ खाने को मिल जाए तो थकान बिल्कुल उतर जाती है. एंड ऑल दिस एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. This India coffee house serves a lot of attractive snacks. For instance, egg preparations, sandwiches, potato chips, my favorite the dosa, and of course यहाँ की कॉफी तो मशहूर है. तो ये थी आपकी छोटी सी मुलाकात बैंगलोर से और यहाँ के ऑथेंटिक जायकों से. अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद मिलते हैं कुछ और मजेदार जायकों के साथ. और हमारे रेसिपी सेक्शन में आज हम आपके लिए लाए हैं कर्नाटक की वेजिटेरियन डिश व्हिच इज कॉल्ड वांगी भात. मेरे साथ है शेफ वर्मा. हाउ डू यू शेफ? आप मुझे सिखाएंगे वांगी भात किस तरह बनाते हैं? जरूर. ठीक है, पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि वांगी भात इज अ राइस डिश, चावल की डिश है, राइस डिश है, अलॉन्ग विथ बैंगन एंड मूंगफली. इस डिश को बनाने से पहले द 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स जो आपको चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए, इज़ एक तो है उबला हुआ राइस, ऑलमोस्ट 1 बोल या 1 कटोरी कच्चा राइस, इसको उबाल के रख दीजिए. सेकेंड थिंग जो आपको चाहिए वो है बैंगन, कटे हुए हल्के से फ्राई किए हुए. एंड तीसरी चीज़ जो है वो है मूंगफली, अगेन हल्की सी फ्राई की हुई. तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. इसके अलावा आपको मसाले चाहिए एंड कुछ वेजिटेबल्स चाहिए चॉप किए हुए. जैसे आपको 1 प्याज चाहिए होगा चॉप किया हुआ, 1 टमाटर चाहिए होगा चॉप किया हुआ, आपको चाहिए होगा
जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची और क्या हल्दी, नमक, 2 साबुत मिर्ची भी आपको चाहिए होंगे गार्निशिंग के लिए, एंड आई थिंक तेल, हाँ, एंड जिंजर, अदरक लहसुन की पेस्ट जो होती है। तो चलिए शुरू करें शेफ। ये हमने गैस चला दी। अब तेल डालेंगे। तेल डालिए इसमें। कितना तेल डालेंगे? आधी कड़छी। जैसे तेल गर्म होता है उसमें आप 1 कटा हुआ प्याज डाल दो। जी। अब हमारा अगला स्टेप क्या है? अब आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। अदरक लहसुन कितना डालेंगे? 1 चम्मच। 1 चम्मच। 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक एंड लहसुन। बेसिकली कितना अदरक लहसुन छीलते हैं इसके लिए? 100 ग्राम दोनों मिला के। अब आप इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए। जी। अब इसमें 2 लाल मिर्ची डालिए। ये लाल मिर्ची जो आप डाल रहे हैं सूखी लाल मिर्ची। सूखी लाल मिर्ची। तो ये किस चीज़ के लिए आप डालते हैं? आप इसलिए डालते हैं टेस्ट के लिए या कलर के लिए? तो गार्निश डिश को एक कलरफुल बनाती है। ठीक है, तो ये हमने 2-3 मिनट तक पकाया। अगला स्टेप? अगला अब आप इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालिए। 1 कटा हुआ टमाटर। अब इसमें आप नमक डालिए। उसके बाद इसमें पानी ऐड कीजिए। एक बात बताइए, नमक डालने से क्या टमाटर जल्दी पकता है? जल्दी पकता है। उसका पानी जल्दी छूटता है। अभी तक फिर से मैं बता दूं आपको, तेल लिया, प्याज डाला, ब्राउन किया, उसके बाद मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, उसके बाद आपने डाला 2 लाल मिर्ची गार्निशिंग के लिए, उसके बाद आपने डाला नहीं, आपने नमक नहीं डाला, आपने डाला टमाटर डाला, उसके बाद आपने डाला नमक। ठीक। अब आप इसमें पानी डालिए। इसमें पानी कितना पानी डालें? 1 कड़छी, आधा कप। इतना बस। तो अब ये अब उसको 4 से 5 मिनट तक पकाइए ताकि टमाटर थोड़ा पक जाए अच्छे से। भी कितनी देर ऑलमोस्ट हमको? 4-5 मिनट। 4-5 मिनट और। ये हो चुका है? हो चुका है। अच्छा, अब आप इसमें चावल डालें। कच्चे चावल डाल के पानी डालेंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा? हाँ। अच्छा, पहले ही चावल को प्री बॉयल करके रखना है। ठीक है। तो ये जो वांगी भात है, इसको किसी करी के साथ खाया जाता है या दही के साथ खाया जाता है? नहीं। ये एकदम मॉइस्ट हो गया है। हाँ जी। इट स्मेल्स लाइक बिरयानी। बिरयानी का जैसे सैफरन कलर्ड होते हैं चावल, बिल्कुल वैसे है ये। नहीं। इसे बैंगन बिरयानी, साउथ इंडिया। बट व्हाटएवर इट इज, ये लगती जो ये चावल हैं, ये लगते हैं तो सैफरन है एकदम, बिल्कुल जैसे मुर्ग बिरयानी खाओ या मटन बिरयानी खाओ। अब ये हो गया। अब आप इसमें वो कटे हुए बैंगन है, हाँ, फ्राई किए हुआ। ठीक है, फ्राई किए हुए। तो कितने डालना है? 1 बैंगन। बस। अब इसको आहिस्ता इसमें मिक्स कीजिए। ठीक है। अभी बैंगन डालने के बाद चावल को कितनी देर पकाना है? ज्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट कि बैंगन उसमें चावल के साथ अच्छा बराबर मिक्स हो जाए। बट बैंगन ये पक जाएगा 1-2 मिनट में? हाँ जी, ये पहले फ्राई किया हुआ है। हाँ। ये बैंगन समझ लो 90% पका हुआ है। बट जनरली जब हम भरता बनाते हैं तो बैंगन को बहुत देर लगती है पकने में। वो बैंगन साबुत होता है। अच्छा, पूरा बैंगन हाँ, होता है। वो तो है, बट बैंगन और उसको रोस्ट अच्छी तरह रोस्ट करना पड़ता है। ये बैंगन जो कटा हुआ है हल्का फ्राइड है, एंड अभी 2 मिनट और अगर हो जाए तो पक जाएगा। पक जाएगा। अच्छा, इसमें वैसे फ्लेवर के लिए अगर इंडिविजुअल टेस्ट है हाँ। तो आप और क्या क्या ऐड कर सकते हैं? और इसमें मूंगफली। नहीं, मूंगफली तो वैसे भी ऐड होती और है। उसके बाद एक जो मेन चीज है, इमली का रस, पानी, जो ज्यादा इसमें टेस्ट देगा। वो मस्ट है डालना कि डाल सकते हैं अगर डाल सकते खटाई हैं। का टेस्ट? हाँ, डाल सकते हैं। अच्छा, और करी पत्ता ठीक है। डालिए। तो क्या डालूं अभी? मूंगफली? मूंगफली डालिए।
पहले मूंगफली डालेंगे, फिर करी पत्ता डालेंगे। फिर करी पत्ता डालेंगे। मूंगफली कितना? 10 ग्राम पहले। अबाउट 2 चम्मच। अभी इसको 2 मिनट और। अभी भी चावल सूखे नहीं है, पर ये क्यों चावल सूखे नहीं है अभी? इसमें इतना? जो पानी डाला हमने, हाँ। जो ग्रेवी बनाई थी इसकी, तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए, ड्राई नहीं होना मांगता है। ठीक। अब आप इसमें, अगर ये ड्राई होने लग जाए तो और पानी डाल देना चाहिए? नहीं, फिर राइस सारा टूट जाता है। एक और बात बताइए, जब जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स डाले, सब कुछ पेस्ट शेस्ट बनाई, उसके बाद हम राइस डाल के उबाल नहीं सकते? ना। टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाए। अब बताइए शेफ। अब इसमें आप करी पत्ता डालिए, अच्छा, जो यहाँ की मेन गार्निश है। साउथ इंडिया की। जी। ये करी पत्ता कहीं और भी उगता है कि सिर्फ साउथ इंडिया में? नहीं, और भी, ये हर जगह मिलेगा आपको इंडिया में। ये बेसिकली जस्ट गार्निशिंग है कि इसका अपना कोई फ्लेवर भी है? इसका फ्लेवर भी है और गार्निश कलरफुल बनाने के लिए डिश को। अच्छा, जी। ठीक है। अब आप इसके इसको अलावा निकाल दीजिए। लुक्स डिलिशियस। मैंने आज तक कभी वैसे बैंगन की बिरयानी खाई नहीं है। वांगी भात बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए चावल, कटा हुआ बैंगन, मूंगफली, कटे हुए प्याज, कटा हुआ टमाटर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, तेल और अदरक लहसुन का पेस्ट। तेल को गरम करके उसमें कटे हुए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और 2 लाल मिर्च डालें। 2-3 मिनट तक पकाएं। अब डालें कटा हुआ टमाटर, नमक और पानी, और 4-5 मिनट तक पकने के बाद उसमें उबले हुए चावल, बैंगन और मूंगफली डालें। अच्छी तरह मिलाएं, कड़ी पत्ता डालकर सर्व करें। Welcome back to जायके का सफर from one of the most happening 5 stars in town, which houses Lanai, a unique 24-hour Hawaiian coffee shop, Tycoon's यहाँ का सबसे मशहूर स्पेशलिटी चाइनीज रेस्टोरेंट एंड सनडाउनर बार एंड ग्रिल, जहां आप लुत्फ उठा सकते हैं इंडियन तंदूरी जायकों का। लनाई, जो ले मेरिडियन की एक खूबसूरत कॉफी शॉप है, अपने वुडन पैटियो स्ट्रक्चर की एम्बियंस की वजह से शायद पूरी कंट्री में एक अकेली कॉफी शॉप है जिसमें हवाईयन टच है। जब डिजर्ट की बात की जाती है, तब भी आपको गुलाब जामुन, केक्स एंड बाकी हैवी डिजर्ट्स के अलावा चॉइस मिलती है वेरी लाइट नेचुरल फ्रूट्स जैसे डिजर्ट्स की। We have given a thought in this manner that what best we can provide as far as the food and beverage facilities are concerned in the hotel. Towards this, we have got one of the best talk about restaurant is Lanai, which is mainly the Hawaiian restaurant. It's got a lovely atrium, and it serves the all three meals, that is breakfast, lunch and dinner, in a form of a elaborate buffet. यहाँ की यूनिक बात ये है कि रिच फूड सर्व करने के अलावा हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए भी यहाँ तरह तरह के सैलेड सर्व किए जाते हैं। Apart from that, we have got the continental and the French and Italian restaurant, which we have very recently opened. It is attached to the Sundowner Bar, and it overlooks the swimming pool of our hotel. And this particular bar is most talked about, it's raved about, it is one of the finest in our service.
थी हमारी छोटी सी कोशिश बैंगलोर के कुछ पुराने और लजीज जायकों के साथ इस शहर के उस चांद को दिखाने की, जिसकी बदौलत कहा जाता है कि those who come here never wish to leave it। अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे बैंगलोर से जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि साउथ एशिया की उन सिटीज में से एक है जो सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।